Hello everyone. From today, we will start a new series of Indian economy, which is relevant for UPSC, state PSC, SSC, and other competitive examination. So, welcome you all. Let's start. So, we will study macroeconomy. Macroeconomics means the study of economics in a large sense. Study of economy in a large behavior like national income, growth of national economy. These are the example of macroeconomic. So first topic is national income. To calculate national income, we have to study about economic sections. So there are four economic section. There are four economic section. First is household. Second is firms. Third is government. Fourth is financial sector means bank वगैरह bank NBFCs. These are the financial sector. We consider household because of consumption pattern, that is consumer and their role. Firms, producer of goods and services. Government, like consumer of good and services. Building capital like infrastructure, medical. Collection of taxes, collection of taxes, provision of subsidies. Financial sector, bank, NBFC, etc. So financial sector act as a intermediaries. ठीक है. Now we will understand the circular flow of income and expenditure. So circular flow of income and expenditure. Okay. So these are these are firms, these are households. These are firms and these are household. Household household work in the factory means these they are the factor of production. In return, what he got? Factor in payment. Factor payment. Worker work in a factory, they produce final good and services. Final goods and services. Now the worker earn the income and buys some goods and services. So these are called private final consumption e- e- consumption expenditure. So it is factor of production. Basically four factor of productions, four important factor of production. First one is land. Second one is labor. Third is capital. Fourth one is entrepreneurship.
सो लैंड शुड बी नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर ह्यूमन रिसोर्स इनपुट्स, कैपिटल कैपिटल होना चाहिए कौन, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मैनमेड होना चाहिए, मैनमेड रिसोर्स होना चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। इन रिटर्न व्हाट दे गॉट, इन रिटर्न व्हाट दे गॉट फैक्टर पेमेंट। यदि लैंड दिए हुए हैं तो इसका फैक्टर पेमेंट होगा रेंट, लेबर दिए हुए हैं तो इसका फैक्टर पेमेंट होगा वेजेस, यदि कैपिटल दिए हुए हैं तो इसका फैक्टर पेमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट। यदि एंटरप्रेन्योरशिप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो इसका फैक्टर पेमेंट क्या होगा, प्रॉफिट। So these are the basic things to understand the national income. So now we understand what is national income. The total money value of all final goods and services produced by the resident of the country over a period. देखिए, total money value होना चाहिए, ठीक है, of all goods एंड सर्विसेज, जितने भी हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं सभी का मनी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो मनी वैल्यूज, सो मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो सो नेशनल इनकम इज कॉल्ड, नेशनल इनकम क्या है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको यहाँ तीन चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट है टोटल मनी वैल्यू, मनी वैल्यू है हम टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड है प्रोड्यूस कहाँ किसके द्वारा हो रहा है, रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, कितने टाइम तक हो रहा है, कितने टाइम के लिए ये हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट से 1 साल के लिए हो रहा है, नेशनल इनकम काउंट किया जा रहा है, तो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। नेशनल इनकम हम लोग दो तरीके से मेज़र करते हैं, एक है करेंट प्राइस और सेकेंड है हमारा कांस्टेंट प्राइस। इसमें वो होता है क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ करेंट ईयर into market price of the final goods and services on current year। ये हुआ हमारा करंट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ current year but calculated with market price of base year। विच इज़ लाइक अभी तो हमारा 2011 का ही है, 2011-12 कहीं बेस ईयर है। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस को हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये हुआ हमारा नॉमिनल।
ओके। कांस्टेंट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल। ओके। जब रियल नेशनल इनकम हम लोग निकालते हैं विद कंपैरिजन टू नॉमिनल नॉमिनल नेशनल इनकम, तो हमें पता चलता है, मतलब कि इन्फ्लेशन का पता चलता है। इन्फ्लेशन का पता चलता है, तो हम लोग रियल कांस्टेंट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्यों निकाला जाता है? इसलिए क्योंकि हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। नेशनल इनकम डिफ्लेटर क्या होता है? तो सिंपल है, नेशनल इनकम डिफ्लेटर नॉमिनल नेशनल इनकम बाय रियल नेशनल इनकम, जिससे कि हमें जो